حکومت میں گرمی مزید بڑھنے لگی ہے۔ صبح سویرے سورج نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں موسم مزید گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہیٹ ویو کے خدشے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ جی دیکھیے، صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج بھی موسم گرم رہے گا، خشک رہے گا۔ صبح سے ہی سورج نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے ہیں، جو یہ ظاہر کرتی ہے بات کہ آج سورج پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی تپش کو بکھیرے گا۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور اس وقت موجودہ درجہ حرارت شہر لاہور کا جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 42% ہے، جبکہ ہوائیں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 31 مئی تک ہیٹ ویو شہر لاہور میں رہے گی، اور آج 26 مئی ہے، سرکاری سطح پر پہلی چھٹی ہے۔ بچے اپنے جانوروں کے ساتھ گھروں کے باہر جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے خدمت کے لیے مصروف ہوں گے، جس کی وجہ سے انہیں ہیٹ ویو سے جو ہے احتیاطی تدابیر کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، اپنے جانوروں کے ساتھ کھیلنے سے گریز کریں، گھروں میں رہیں، کیونکہ شدید قسم کی ہیٹ ویو ہے جو کہ باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، ٹھنڈے تولیے کا استعمال کریں، اگر باہر نکلنا مقصود ہو زیادہ سے زیادہ مشروبات کا استعمال کریں تاکہ باڈی ہائیڈریٹ رہے اور ہیٹ ویو سے بچا جا سکے۔ 31 مئی تک شہر لاہور میں بادلوں کے برسنے کے بالکل بھی امکانات نہیں ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان۔ شہر کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کا بھاؤ تاؤ جاری ہے۔ بیپاریوں کا موقف ہے ریٹ کم لگ رہے ہیں، خریداروں کا کہنا ہے دام تیز ہیں۔ شہری اس کوشش میں ہیں کہ جانور خوبصورت بھی ہو اور سستا بھی مل جائے۔ شہر کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر ہے۔ مناوا منڈی میں شہری اس کوشش میں نظر آتے ہیں کہ جانور خوبصورت بھی ہو اور سستا بھی مل جائے۔ بچوں کے بھاؤ تاؤ میں سب سے زیادہ دلچسپی 2 سے 3 من وزنی بچڑا 4 لاکھ روپے تک، جبکہ 5 سے 7 من وزنی جانور کا 8 لاکھ روپے تک مانگا جا رہا ہے۔ خوبصورت اور قد کاٹ والے جانور کے الگ ہی دام لگائے جا رہے ہیں۔ خریداروں کا کہنا ہے بیپاری کے ساتھ سودے بازی جاری ہے، امید ہے اچھا جانور مناسب قیمت پر مل جائے گا۔ صبح 4 بجے کا میں منڈی آیا ہوں، ہم نے 2 سے 3 جانور لینے تھے کیونکہ ہم ماشاءاللہ 6 بھائی ہیں تو سب نے قربانی کرنی ہے۔ ابھی ہم نے ایک جانور جو سا لیا ہے وہ لیا ہم نے 4.25 کا، لیکن اب اسی جانور کا اگر ہم دوسری جگہ سے جا کے ریٹ لیتے تو بھیا اس کا 6 لاکھ 7 لاکھ سے نیچے آ ہی نہیں ریٹ، اتنا تیز ہو گیا ریٹ، اور صرف 2 سے 3 گھنٹے میں۔ ہم صبح تقریباً 4:30 بجے کے آئے ہیں، اب 9-10 بج گئے ہیں، ابھی تک ایک جانور لیا، 2 لینے ہیں، ایک اور لینا ہے بس، لیکن مل نہیں رہا ابھی، تو مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا جانور ہے لیکن خریدار ریٹ کم لگا رہا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی بھرپور خاطر مدارس شہریوں کا جانوروں کی خوراک، دیکھ بھال اور سجاوٹ پر زور۔ بچوں نے پسندیدہ جانوروں پر مہندی اور رنگوں سے خوبصورت ڈیزائن بھی بنا دیے ہیں۔ باتیں ہی شہری قربانی کے جانوروں کی خدمت میں دن رات مگن۔ کہیں جانوروں کے لیے خصوصی خوراک کا انتظام کیا جا رہا ہے تو کہیں انہیں سایہ دار مقامات پر رکھا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خوراک، صفائی اور آرام کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ عید تک جانور صحت مند رہیں۔ ہم نے ویڑا خریدا۔ کیا کھلا پلا رہے ہیں؟ اس کو ہم پھل وغیرہ کھلا رہے تھے اور یہ پھٹے وغیرہ اب شروع کیے ہیں، پہلے شربت وغیرہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے۔ کتنی دیر سے خریدا ہوا؟ 2 مہینے ہو گئے۔ دوسری جانب شہری قربانی کے جانوروں کی سجاوٹ میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ رنگ برنگی رسیوں اور ہاروں سے جانوروں کو سجایا جا رہا ہے۔ بچوں نے اپنے پسندیدہ جانوروں پر مہندی اور رنگوں سے خوبصورت ڈیزائن بھی بنا دیے۔ جی ہم نے ایک ویرا خریدا اور 7 سے 8 بکرے خریدے ہیں۔ تو سجایا ہوا ہے بکروں؟ جی ہم نے سجایا ہوا کیا ہے، لگایا ہے بکروں؟ ان کو ہم نے کولرز وغیرہ پہنائے ہیں سجاوٹی، اور وہ جھانجریں بنائی ہوئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ محبت، خدمت اور اپنائیت کا بھی اظہار ہے، اسی لیے وہ اپنے جانور کی بھرپور دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش ہے۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے مربوط پلان بنا لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
ईद उल अजहा सर पर आ पहुंची। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए एक मजबूत प्लान तैयार किया गया है ताकि शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस हवाले से सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शेराजी का कहना है कि 8 DSPs, 18 सेक्टर इंचार्जेस समेत 250 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स को मंडियों से मुल्हिका अहम शाहराहों पर तैनात किया गया है। मोटरवे से मुल्हिका मंडियों में मोटरवे पुलिस से मिलकर ट्रैफिक रवां रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। मवेशी मंडियों के अंदर हमारे 8 DSPs, 18 सेक्टर इंचार्जेस और तकरीबन 250 के करीब जो हमारे ट्रैफिक एहलकार हैं, लिफ्टर्स हैं, ब्रेक डाउन ट्रक्स हैं, वो हमारे पास इन प्लेस हैं। उसके अलावा हमेशा से जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो मेन मंडी है और शाहपुर कांजना वाली, वो बेसिकली मोटरवे का एरिया है, तो उनके जो अफसरान हैं उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन हो गई है। तो हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो गई हैं और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन हो गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मवेशी मंडियों और बस अड्डों पर इजाफी वार्डन्स तैनात कर दिए गए। शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करें ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम से कबल पंजाब में सिक्योरिटी हाईलाइट काबीना कमेटी बराए अमनो अमान का अहम इजलास हुआ। इबादत गाहों, मवेशी मंडियों और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला पंजाब में कबीना कमेटी बराए अमन अमान का 53वां अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन और बिलाल अकबर खान समेत आला सिविल और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इबादत गाहों, हसास तनसीबात और बैनुल सूबाई बॉर्डर चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत भी जारी की गई। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सूबे भर में 4th शेड्यूलर्स और मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए। कलदम तंजीमों को कुर्बानी की खाले जमा करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। बिलाल यासीन ने मवेशी मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी की हिदायत की। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक पंजाब में 38,507 ईद इज्तिमात मुनक्किद होंगे, जिनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। इजलास में IG पंजाब, CTD स्पेशल ब्रांच और ज़िला इंतजामिया के आला हुकाम ने शिरकत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बस अड्डों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मॉनिटरिंग में। ईद सर पर आ गई, परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। जायद किरायों और ओवरलोडिंग की शिकायत पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर DPOs को बस अड्डों और ट्रांसपोर्ट की चेकिंग का हुक्म दे दिया। हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा अवेजा करना लाजिम करार। ओवर चार्जिंग करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर रूट परमिट और बस स्टैंड के इजाजतनामे मनसूख करने की हिदायत। ईद के मौके पर फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। महकमा ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया को मुसाफिरों की ओवरलोडिंग रोकने का टास्क भी दे दिया गया। बस अड्डों पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। मुसाफिरों की शिकायत के अजाले के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। ईद मनाने के लिए परदेसियों की अक्सरियत घरों को रवाना। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लगा रहा। ट्रेनें घंटों लेट, बुकिंग 100% मुकम्मल। परदेसी शदीद गर्मी में टिकटों के लिए लाइनों में अक्सरियत ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर से आबाई इलाकों को रवाना। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का हजूम उमड़ आया। ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। टिकटों का हुसूल अजाब बना रहा। मुसाफिर टिकटें खरीदने के लिए सामान और बीवी बच्चों के हमरा स्टेशन पर धक्के खाते रहे। कराची और दीगर शहरों से आने वाली ट्रेनें भी घंटों लेट। शदीद गर्मी में इंतजार परदेसियों का मुकद्दर बन गया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनें लेट आ रही हैं। रेलवे इंतजामिया ने हमें बार वक्त इत्तला नहीं की। रश बहुत है, गर्मी भी बहुत है और अमूमन जो है ना गाड़ियों लेट ही जाती हैं। 1.5 घंटा 2 घंटे लेट जा रही हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है दूर वालों को और मुसाफिरों को तंगी होती है। और पंखे जो है हवा कम देते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है। घंटा 1.5 घंटा ट्रेनें लेट हैं। ईद की छुट्टियों की वजह से रश बहुत ज़्यादा है। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अवाम को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों में बहुत रश हो गया और पंखे भी बंद, जबकि रेलवे स्टेशन पर सहूलियात बहुत नाकाफी हैं, जिससे हमें शदीद परेशानी का सामना है। वज़ीर रेलवे इस सूरत हाल का नोटिस लें। ईद उल अज़हा करीब आते ही लारी अड्डों पर आबाई घरों को जाने वालों का रश बढ़ने लगा है। बस अड्डों पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है, जो वहां इंतजार की खारी बर्दाश्त कर रहे हैं।
शहरों से देहात और मुख्तलिफ अजला में जाने वाली गाड़ियों का रश बढ़ गया। कई रूट्स पर गाड़ियां कम और सवारियां ज्यादा होने के बाइस मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का कहना है चंद माह के दौरान ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हुआ है। महंगी टिकटें खरीदने के बावजूद बर वक्त गाड़ियां न मिलने पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। बस अड्डों पर रश बढ़ने के साथ इजाफी किरायों की शिकायत भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मुसाफिरों का मुतालिबा है कि ईद से पहले खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम किया जाए। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मन मानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ। बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ जलील ख्वार हैं। 1.5 घंटा कम से कम सानू इंतजार करते होता है। जो किराया पहले चल रहा है 2500-2700 रुपया, हम डबल चार्ज कर रहे हैं। कहते 5000 सीट होगी एक बुक, पहले से 2500 दे जाते 2700। तो बस भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, समझ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मुसाफिरों का कहना है महंगाई और सफर की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए आबाई घरों तक पहुंचना जरूरी है। कैमरामैन शहबाज के साथ शाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए लेस्को का खसूसी प्लान मुकम्मल। कंप्लेंट सेंटर्स को 24 घंटे फाल रखने का फैसला किया गया है। एमरजेंसी टीमों और फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। लेस्को ने ईद के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट के मुताबिक खराब ट्रांसफार्मर्स की फौरी तब्दीली के लिए खसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तमाम अफसर अपने मोबाइल फ़ोन्स फाल रखें और सार्फिन से मुसलसल राबते में रहें, जबकि कंट्रोल रूम्स के जरिए सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रहेगी। लेस्को चीफ का मजीद कहना है ईद के दिनों में सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फराहमी तरजीह है। शहरियों से अपील है कुर्बानी के जानवर बिजली की तनसीबात ट्रांसफार्मर्स, खंभों और तारों से दूर रखें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। एमडी वासा गुफरान अहमद कहते हैं ईद उल अज़हा पर पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों को फौरी रिलीफ की फराहमी वासा लाहौर की अवलीन तरजीह है। एमडी वासा की ज़ेर सदारत इजलास में डिसिल्टिंग, गैंग फील्ड ऑपरेशंस और नकासी आप के अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। गुफरान अहमद ने हिदायत की हैं कि तमाम फील्ड स्टाफ की हाज़िरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। डिसिल्टिंग ऑपरेशंस को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाया जाए। ट्यूबवेल ऑपरेशनल आवर्स की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखा जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहरियों को आलाइशों के लिए घर घर बैग पहुंचाए जाएंगे। माहौल को साफ सुथरा रखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मरियम नवाज की हिदायत है कि हर साल 1 लाख ख़ानदान को घर फराहम करें। ईद उल अज़हा के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। तो बहुत वो प्राउड मूवमेंट्स थे जब मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ पे कहा कि जी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं पाकिस्तान के लोगों का मोहब्बतों भरा पैगाम लेके आई हूँ और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं 1 लाख घर 1 साल के टाइम में कंप्लीट करके आई हूँ। ये बहुत बड़े हमारे लिए प्राउड मूवमेंट्स थे। उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया कि सुथरा पंजाब में लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान के और पंजाब के लोगों को उनकी जो बेसिक नीड है उनकी रिक्वायरमेंट पूरे कर रहे हैं और उनको साफ़ सुथरा माहौल दे रहे हैं। ये मरियम नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया कि यहाँ पे कुर्बानी की ईद का दूसरा मतलब ये होता था गंदगी के ढेर, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं होगा कि सेम डे सेम मूवमेंट पे आपके डोर स्टेप पे डोर नॉकिंग करके आप लोगों के लिए ये सहूलत दी गई कि आपको वो के गुलाब की स्प्रिंकलिंग होगी ताकि माहौल जो है वो बड़ा खुशगवार है। ये सारी चीज़ें कभी होते हुए देखी आपने? हमारी भी ज़िंदगी पब्लिक लाइफ में गुजरी, कभी इस तरह के इनिशिएटिव्स देखे आपने? और ये मुफ्त हो जाते हैं। अब याद रखें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको 1 साल पहले कहा जा रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ नियर टू डिफ़ॉल्ट, और आज ये सारी चीज़ें दुनिया मान रही है, दुनिया के फोरम पे जाके बात कर रहे हैं। और दुनिया के फोरम पे जाके पाकिस्तान का ये स्टेटस चेंज नहीं हुआ कि पहले पाकिस्तान दुनिया के फोरम पे जाता था कि भाई हमें कुछ दे दो, आज हम बता रहे हैं कि हम ये करके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आप हमें नज़र नहीं आती? तो अगर उसके बावजूद भी दिल में बुग़्ज़ है तो उसका इलाज भी हमारे पास मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि ईद के दौरान मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल SOPs की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ है और सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि एडिशनल सेक्रेटरीज़ और तमाम स्पेशलाइज्ड अस्पतालों के
MS साहिबान भी शरीक हुए। ईद उल अज़हा के दौरान मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियत फराहम करने के लिए एमरजेंसीज, इंडोर वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स और फार्मेसीज में डॉक्टर्स और अमले के खसूसी ड्यूटी रोस्टर्स जारी किए गए हैं। अवाम के साथ साथ सियासतदानों की ईद की मसरूफियात, ईद कुर्बान पर सियासी रहनुमाओं ने भी अपने अपने शहरों और आबाई इलाकों का रुख कर लिया है। कोई लाहौर में ईद मनाएगा तो कोई कराची, मुल्तान और गुजरात में कुर्बानी की खुशियों में शरीक होगा। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार लाहौर में ईद मनाएंगे। ईद छोटी हो या बड़ी, सभी की ख्वाहिश अपने इलाकों में ईद मनाने की। सियासी रहनुमाओं ने भी ईद उल अज़हा मनाने के लिए बाई इलाकों का रुख कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना में नमाज ईद अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जिला अटक में ईद मनाएंगे। सरदार अयाज सादिक, अलीम खान, लियाकत बलोच लाहौर में ईद करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान और राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में ईद मनाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, शाफे हुसैन और सालिक हुसैन गुजरात में ईद की खुशियों में शरीक होंगे। मोहम्मद यासीन, लाहौर। गंदम की गैर कानूनी खरीदारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए अहम इकदाम। पंजाब में डिविजनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व मैनेजमेंट कमेटीज कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। हर डिवीजन में कमिश्नर, डिवीजन स्ट्रेटेजिक रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर जबकि डिप्टी कमिश्नर शरीक कन्वीनर होंगे। फार्म, फ्लोर मिल्स और लाइसेंस याफ्ता कमीशन एजेंट्स के नुमाइंदों को भी कमेटियों का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटियां गैर कानूनी खरीदारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मजाज नकलो हमल रोकने की जिम्मेदार होंगी। गंदम की गोदामों तक तरसील, सिक्योरिटी और एलाइड ऑर्डर की निगरानी भी कमेटियां करेंगी। कमेटियों को किसी भी खिलाफ वर्जी, तनाज़े या बदअमनी को फौरी रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को देने का हुक्म दिया गया है। FPCI ने पहली मरतबा शैडो बजट पॉलिसी पेश कर दी है। 5 साल में मजमूई GDP $688 अरब और बरामदात $80 अरब तक ले जाने की तजवीज़। FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर में इकनॉमिक पॉलिसी बजट सिफारिशात पेश कर दी गयी। तकरीब में साबिक वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज, सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख भी मौजूद थे। CEO थिंक टैंक अहमद नवाज सुखेरा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारी सिफारिशात पर अमल किया जाए तो 5 साल में मुल्क की GDP $688 अरब तक ले जा सकते हैं। हमने 5 साल में बरामदात $80 अरब जबकि तजारती खसारा 0 करने की पॉलिसी दी है। कारपोरेट टैक्स को कम करके 25% जबकि तनख्वाह पर टैक्स 35% घटाकर 20% लाया जाए। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पर टैक्स 5.5% से 0.5% किया जाए। GDP अभी गवर्नमेंट ने $452 बिलियन एस्टिमेट बताया है। हम समझते हैं कि 5 साल $688 बिलियन पर पाकिस्तान को ले जाया जा सकता है, जो कि $236 बिलियन की ग्रोथ रेट जो हमारा इस साल 3.7% के करीब है, इसको 5 साल में 8.5% पे ले जाया जा सकता है। पर कैपिटा इनकम को 1900 से उठा के $2900 पर कैपिटा पे ले जाया जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है तो निजी शोबे को साथ खड़ा करना होगा। कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना। पाकिस्तान इस पोजीशन में खड़ा है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 साल बहुत मेहनत की है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी अचीव कर सके। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को लीड किया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तानियों का नाम रोशन हो बल्कि हम एक कौम ऐसी बन के खड़े हो गए हैं कि अपना सर बुलंद करके आज हम पूरी दुनिया में खड़े। शैडो बजट में कहा गया कि नए NFC अवार्ड के इजरा को तवील अरसे तक मुअख्खर न किया जाए। महकमों को हर साल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बजट की तकसीम की जाए। 5 साल में 2 करोड़ नई मुलाजमतें पैदा कर सकते हैं। शैडो बजट में दिफाई अखराजात में 35% जबकि पेंशन में 23% इजाफे की तजवीज़ है। तकरीब में FPCCI के नायब सदर ज़की एजाज और यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने भी शैडो पॉलिसी के निकात पर रोशनी डाली। कैमरामैन फैसल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर ने सनतों और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बजट तजवीज़ दे दी हैं। सदर चैम्बर कहते हैं टैक्स हदफ हर साल बढ़ा दिया जाता है। टैक्स नेट बढ़ाने, मईशत को फ़रोग़ देने पर संजीदगी नहीं दिखाई जा रही।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क़यादत ने सनतों और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए बजट तजावीज़ दे दी हैं। लाहौर चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, आइंदा वफाकी बजट का हुजम तकरीबन 17,500 अरब रुपए तक महदूद रखने की सिफारिश की है। FBR टैक्स हद में सिर्फ 4 से 5% इजाफा किया जाए। FBR का नया टैक्स हद 14,700 से 14,800 अरब रुपए तक रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त आवाम को रिलीफ की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही, तो इन हालात में आप जॉब क्रिएशन हो नहीं रही, तो कैसे इतना बड़ा भारी जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है आपको उसको अचीव कर सकेंगे। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने कहा, बिजली टैक्सेस और मार्कअप पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर हुकूमत उन मामलात पर इस्लाहात नहीं करती तो उसका वाज़े मतलब है कि हुकूमत सनत नहीं चलाना चाहती। इस वक्त 36 इदारे हमसे टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी में है कि आपने इंडस्ट्री चलानी है, तो फिर जो है वो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर अपनी इस्लाहात करनी पड़ेंगी। हम कहते हैं जो पहले इंडस्ट्री को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे चीज़ें तंग कर रही हैं, बिजली, गैस, मार्कअप, टैक्सेस, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी तैयार ही नहीं है। हर हाल में जो है गवर्नमेंट को दोस्त पॉलिसीज़ देनी पड़ेंगी ताकि हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करें और ये इंडस्ट्री को हम चला सकें। वरना हम ये समझते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट इसके ऊपर अपनी इस्लाहात नहीं करती तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है कि वो इंडस्ट्री को चलाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने कहा, ईरान से 104 मेगावाट बिजली खरीदारी पर बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक बार फिर महंगी बिजली के मुआहिदे समझ से बालातर हैं। हालिया जो गवर्नमेंट ने 104 मेगावाट बिजली जो ईरान से खरीदी है, जिसका नेपा ने रेट अप्रूव किए हैं 12.4 सेंट पे, मैं उसे हाईली कंडेम कर रहा हूँ। हम तो पहलों को रो रहे हैं कि 35 रुपये आप उनसे अगर बिजली परचेज करेंगे तो फिर किस भाव पे आप जो है ना लाइन लॉसेज और सर्विस चार्जेस और दीगर चीज़ें ला के तो फिर आप उसको 45-50 रुपये पे पहुँचा रहे हैं। इस मौके पर नायब सदर खुरम लोधी समेत EC मेंबरान इमरान सलीमी, मोहसिन बशीर और दीगर ने भी अवाम दोस्त बजट देने का